Welcome to this channel. In this video, we'll try and understand the excretion in man. In the previous videos, as we have understood the structure of the kidney, the structure of the nephron, the functions of the liver as well. So we are moving forward, and in today's video, we'll try and understand the adaptations of the kidney and its effect on the hormones and effects of hormones on its working, right? So how the kidney has been adapted with time and with the needs, and how the hormones, various hormones, affect its working mechanism. So without further ado, let's dive into deep. I think you are familiar with the structure of the nephron. I don't have to interpret this further, but let me just put it over here in a very simple words, in a very simple way. As we know that the nephron consists of the Bowman's capsule. Here you can see the Bowman's capsule. These are the glomerulus. Yeah, glomerulus consist of the bunch of the capillaries, the bunch of the arteries that are arising from it. So this is arising here. This is the afferent arteriole, right? You can see this is the afferent arteriole, and while the another one which is going inside the the nephron, that is known as the efferent arteriole, right? Efferent arteriole, right? uh, from there it is going into the peritubular, it is going into the proximal convoluted tubule, right? Proximal convoluted tubule, and from there it went to the loop of Henle, and from there it went to the distal convoluted tubule, and then our collecting ducts come, right? So in the proximal convoluted tubule, there is the peritubular capillaries, and in the loop of Henle there are the vasa rectas, which help to reabsorb the water from the nephron and they send back the reabsorbed water back in the bloodstream, right? And from here, as we know that from here collecting duct, they drain into the pelvis, they drain into the pyramids, and from there they drain into the pelvis, and from pelvis into the ureter, right? From ureter they move into the bladder, right? They move into the bladder, they retain for a short amount of time, and then through the urethra they go outside the body, the urea go outside the body. So this is a simple structure of the nephron. I don't have to interpret this further. So let's move toward our today's topic, that is the cortical and juxtamedullary nephron, right? These are the types of nephron which have been made, which have been came into being with the evolution, because as we know that the water is the necessity, water is pre-requires it for every life on earth. They need a water. Our body itself is consist of more than 70% of water. In the brain there is the 85% of water. So this is the biological solvent. Every solution, every solutes we will find in water, in our body, right? So therefore we have to conserve this. As with the shortage of water, and those living those we can say that the species living in the land, and in the environment where there is a harsh environment, they have to retain the water at any case. So therefore there is the evolution in this, and we will find that there are two types of the nephron, sorry. Number one is the cortical nephron, and number two is the juxtamedullary nephron. From the name, you can just imagine that what is meant by the cortical. Cortical means cortex, right? So those nephron which are found in the cortex region, only the cortex region, maybe some amount of their loop of Henle would be found in the medulla, but most of them will be found in the cortex region. And if you talk about the juxtamedullary nephron, they would be found in their loop of Henle would be, you will be see their loop of Henle just like here. You will see that it is long in the medullary region,
it is long in the medullary region, right? So if we look at the structure of the structure of kidney is adaptive to the natural habitat of animal. मतलब इसका ये है कि जो नेचुरल हैबिटाट ऑफ एनिमल होता है, अब वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जहाँ के बहुत ज़्यादा पानी है, तो वो उसके पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स उसकी किडनी में बहुत ज़्यादा होंगे। मगर अगर वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जहाँ पे पानी बहुत कम उसको मिलता है, तो उसकी बॉडी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होंगे उनमें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते होंगे। जैसे कि मैमल्स हैं, मैमल्स में ह्यूमंस बीइंग भी आ जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पानी कंजर्व करना पड़ता है। और एक कंसनट्रेटेड यूरिन होती है, एक डायल्यूटेड यूरिन होती है। कंसनट्रेटेड यूरिन होती है जिसपे सॉल्यूट्स ज़्यादा होते हैं और वो गाढ़ी होती है, कंसनट्रेटेड होती है। डायल्यूट वो होती है जो कि गाढ़ी नहीं होती, उसमें वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। तो मैमल्स को वाटर रिटेन करना पड़ता है और जो है उनको कंसनट्रेटेड यूरिन आउट करनी पड़ती है। तो जो कंसनट्रेशन है वो किससे डिटरमाइन होती है? लूप ऑफ हेनले से। जितनी लूप ऑफ हेनले बड़ी होती है उतनी ही यूरिन कंसनट्रेटेड मौजूद होती है। समझ में आया आपको? मतलब जितना लूप ऑफ हेनले की जो है वो लेंथ बड़ी होगी, लेंथ बड़ी है लूप ऑफ हेनले की, ठीक है, तो जो कंसनट्रेटेड यूरिन है वो भी ज़्यादा होगी। कंसनट्रेटेड यूरिन भी ज़्यादा होगी। तो longer length of the loop of Henle causes higher concentration of salt in the medulla, क्योंकि हमें पता है कि जो लूप ऑफ हेनले है उसके मेडुला में जो इन्वायरमेंट होता है वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट कैसे होता है कि वहाँ पे जो है वो टॉनिसिटी ज़्यादा होती है। टॉनिसिटी से मतलब ज़्यादा मतलब ये है कि वहाँ पे सॉल्यूट्स की तादाद ज़्यादा होती है, वहाँ पे NaCl ज़्यादा होते हैं। यही वजह होती है कि वाटर जो है हाइपरटोनिक की वजह से अंदर से बाहर मूव करता है, ठीक है, यही वजह होती है। तो मेडुला में साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से जो है ना वो हायर रेट ऑफ एक्सोस्मोसिस ऑफ वाटर। समझ आ गया? एक्सोस्मोसिस, एक्सो मीन्स आउट, ऑस्मोसिस मीन्स वाटर का आउट जाना। यहाँ से हाइपरटोनिसिटी की वजह से मेडुला में जो है वो सॉल्यूट्स की ज़्यादा तादाद होने की वजह से वाटर जो है यहाँ से मूव आउट होता है, वाटर का एक्सोस्मोसिस होता है, और वो फिर जो है फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट देयर बाय मोर कंसनट्रेटेड यूरिन, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट पर मोर जो है कंसनट्रेटेड यूरिन जमा होता है और वो फिर कंसनट्रेटेड यूरिन आउट होता है इसकी वजह से, ठीक है। दो नेफ्रॉन टाइप के होते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन के पास शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होती है और थोड़ी सी हो सकता है कि स्लाइटली थोड़ी सी मेडुलरी रीजन पे हो। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के पास एक बहुत बड़ी लूप ऑफ हेनले होती है जो कि बहुत डीप जाती है मेड्यूला में, और ग्रेटर द डिमांड ऑफ कंजर्विंग वाटर, जहाँ पर वाटर जिस एनिमल को, जिस मैमल को, जिस ह्यूमन बीइंग को डिमांड ज़्यादा होती है कि वाटर उसको ज़्यादा चाहिए, उसकी बॉडी में जो है वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन भी ज़्यादा पाए जाएंगे, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने ड्रा की हुई है। लेट मी सेलेक्ट अ पेन, green color right over here. So you can see that this is the nephron. This is the nephron this is the basically the cortical nephron, right? Let me label this cortical nephron. All right, this is the cortical nephron, which is found in the cortex. Some part may be found a little bit in the medullary region, but not more than that. From here, the glomerulus, Bowman's capsule, the arteries and capillaries are arising from here and there. So the water is not going to be, it's not going to be reabsorbed for a longer time, and the water is not going to be absorbed more than the water in the juxtamedullary nephron. This is the juxtamedullary nephron, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं लूप ऑफ हेनले कितनी बड़ी है,
लुबोफेनले मेडुला में पाई जाती है। मेडुला में कौन सा इन्वायरमेंट होता है? हाइपरटोनिक होता है। हाइपरटोनिक का मतलब ये है कि यहाँ पे टॉनिसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। अब टॉनिसिटी से मतलब ज़्यादा से मतलब ये है कि यहाँ पे सॉल्यूट्स की तादाद ज़्यादा होती है। जब सॉल्यूट्स बाहर ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे NaCl ज़्यादा है इन्वायरमेंट में, सॉल्यूट ज़्यादा है, ठीक है, वाटर अंदर ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, तो क्या होगा? एक्सोस्मोसिस के ज़रिए वाटर आउट होगा। डेफिनेटली वाटर मूव्स फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन, राइट, मूव्स फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। तो मेडुला में जो इन्वायरमेंट होता है वो ऑलरेडी हाइपरटोनिक, वहाँ पे वाटर कम होता है, सॉल्यूट ज़्यादा होते हैं, तो वाटर अंदर का बाहर मूव करता है। जैसे वाटर मूव करता है ना, ब्लड कैपिलरीज, जैसे वाजा रेक्टा की कैपिलरीज हैं, उनको कैप्चर करती हैं और ब्लड वेसल्स को वापस से लौटा देती हैं, ठीक है। तो इन रिस्पॉन्स जो कि जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन से जो हमारा किडनी में ज़्यादा होते हैं और उनसे जो यूरिया पास होता है वो कंसनट्रेटेड यूरिया होता है, वो गाढ़ा यूरिया होता है, उसमें सॉल्यूट्स की तादाद ज़्यादा होती है बनिस्बत के वाटर के, ठीक है। अब हम आते हैं एक हमारे टॉपिक पर जिसका नाम है इफ़ेक्ट ऑफ हार्मोन्स ऑन द वर्किंग ऑफ किडनी। ये बात तो तय है कि जो हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी में बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। हर एक चीज़ का, हर एक प्रोसेस का जो है वो हार्मोन है, ठीक है। जब एनिमल प्यूबर्टी में रीच करते हैं तो वो भी एक हार्मोन रिलीज़ होता है, तब वो काम होता है। तो एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन। हार्मोन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड से, हाइपोथैलेमस से ये जो है ये हार्मोन्स के सिग्नल्स वहाँ से शो होते हैं और ये टारगेट करते हैं एक जो है, हम कहते हैं कि अपने इफ़ेक्टर्स जो है ऑर्गन को टारगेट करते हैं और वहाँ से जो है हार्मोन रिलीज़ होते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं कि उनका इफ़ेक्ट किडनी पर क्या होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं और हमें पता है कि किडनी के ऊपर एक ऑलरेडी एक ग्लैंड मौजूद होता है। इफ़ यू नो अबाउट दिस, कौन सा ग्लैंड मौजूद होता है, आई विल सजेस्ट यू टू राइट दैट ऑन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई विल रिव्यू दैट। तो जो परमिएबिलिटी है कलेक्टिंग डक्ट्स की, वाटर की, एक कलेक्टिंग डक्ट्स तो पढ़ा ना हमने। जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी दीज आर कलेक्टिंग डक्ट्स। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसके ऊपर कौन सा हार्मोन असर करता है, ठीक है। तो जो कलेक्टिंग डक्ट है, CD है, उसकी जो परमिएबिलिटी है ना वाटर की, वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन से रेगुलेट होती है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होती है। मगर पिट्यूटरी ग्लैंड के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और ये जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है कौन सा हार्मोन? वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। अब ये कैसे रिलीज़ होता है? जब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ब्लड का इज़ रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। मतलब जब डिहाइड्रेटिंग कंडीशन ज़्यादा होती है ब्लड में तो ये रिलीज़ होता है और ये क्या करता है, कलेक्टिंग डक्ट्स को ऑर्डर करता है कि मोर एंड मोर ब्लड को जो है वहाँ से रीअब्सॉर्ब किया जाए। अब जब ADH की प्रेजेंस होती है या वाटर की जो है वैसोप्रेसिन की यहाँ पे प्रेजेंस होती है किसमें, नेफ्रॉन में, तो वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब होता है कहाँ से, कलेक्टिंग डक्ट से, और ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जो है हार्मोन की प्रेजेंस में। और उसके अलावा भी, वाटर के अलावा भी हमारे पास ज़रूरी आयंस होते हैं, जैसे कि हमारे पास सोडियम आयंस हो गया और हमारे पास कौन सा, पोटेशियम आयंस भी हो गया, कैल्शियम आयंस भी हो गए, ठीक है। कैल्शियम आयंस और सोडियम आयंस ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये भी जो है कुछ मिकदार में हमारी बॉडी यूरिन से जो है वो कैप्चर कर लेती है। तो बॉडी फ्लूइड से जो है ये भी कैप्चर हो जाते हैं। कौन से हार्मोन इसमें शामिल होता है? अल्डोस्टेरोन हार्मोन शामिल होता है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होता है। एड्रिनल ग्लैंड मौजूद होता है किडनी के ऊपर, उसमें दो रीजन्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेड्यूला। तो जो अल्डोस्टेरोन है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज़ होता है। इसका काम क्या होता है कि ये इंक्रीज़ करता है रीअब्जॉर्प्शन किसकी, सोडियम आयंस की, नेफ्रॉन से।
इसी तरीके से जो कैल्शियम आयंस हैं ब्लड में जो मौजूद होते हैं या फिल्ट्रेट में जो मौजूद होते हैं, वो भी कंट्रोल किए जाते हैं पैरा हार्मोन से। पैरा हार्मोन या पैराथ हार्मोन, जो भी आप नाम दें। और ये जो पैरा हार्मोन है ये कहाँ से रिलीज होता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड, यू विल सी, मैंने पिक्चर लगाई हुई है पैराथायरॉयड हार्मोन की। ये दरअसल थायरॉयड ग्लैंड जो कि नेक रीजन है वहाँ पे मौजूद होता है। स्लाइड्स में इसकी पिक्चर है, आप आगे चल के देखोगे। और इसका काम क्या होता है कि ये रीअब्जॉर्प्शन कैल्शियम आयंस की नेफ्रॉन से करवाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेट मी सेलेक्ट अ पेन फर्स्ट। यस, यहाँ पे जो है ये एड्रेनल ग्लैंड है जो कि किडनी के ऊपर है। ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या हम इसको कहते हैं वैसोप्रेसिन रिलीज़ करता है। ठीक है, ये इसका काम क्या होता है कि ये सेक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, उसके अलावा हमारा दूसरा हार्मोन कौन सा था? अल्डोस्टेरोन था। अल्डोस्टेरोन एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। इसका काम क्या होता है कि सोडियम आयंस की रीअब्जॉर्प्शन को ये बढ़ा देता है नेफ्रॉन में, अल्डोस्टेरोन। और हमारे पास दूसरा हार्मोन कौन सा होता है? पैराथ हार्मोन, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे थायरॉयड ग्लैंड है। थायरॉयड ग्लैंड के साथ जो है ये वाले 4 हिस्से जो है ना, यहाँ पे छोटे छोटे से थायरॉयड ग्लैंड के पीछे से पैराथायरॉयड हार्मोन्स अटैच होते हैं। ठीक है, लेट मी मेक दिस पिक्चर अगेन। ये समझो कि थायरॉयड ग्लैंड है। थायरॉयड ग्लैंड के साथ साथ यहाँ पे 4 डिफरेंट जो है ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, उसको पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है कि ये कैल्शियम आयंस को रीअब्सॉर्ब करने में मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? ये एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं, कौन सा? पैरा हार्मोन। और ये रीअब्सॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है कैल्शियम आयंस की नेफ्रॉन के अंदर। उसके अलावा हम बात करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ यूरिन की, कि यूरिन की जो कंपोजिशन है उसमें क्या सिग्निफिकेंस अमाउंट में चीज़ें होती हैं। तो यूरिया में जो बेसिकली तादाद होती है 95% वाटर होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल सॉल्वेंट है, और उसमें ही जो है 5% सॉलिड सॉल्यूट्स होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, और जो है यूरिन सैंपल लिया जाता है, हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है यूरिन सैंपल भी। जैसे कि डिजीज़ के या मेडिकल प्रोसीजर्स के कुछ डायग्नोसिस होते हैं, वो यूरिन सैंपल पर रिलाई करते हैं। किस पर रिलाई करते हैं? यूरिन सैंपल्स पर रिलाई करते हैं। कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, इन्फेक्शन होता है, या इवन कि यूरिन में ब्लड आता है, तो वो भी बताता है कि देयर वुड बी सम डिजीज़ एंड सम कॉज, और मे बी द सम प्रॉब्लम इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। और प्रेगनेंसी को भी शो जो है वो यूरिन करता है। एंड और किडनी डिजीज़ को भी जो है, इसका भी जो है ये शो करवाने में हेल्प करता है। और जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है यूरिन में, तो डायबिटीज़ के सिम्टम्स भी शो होते हैं। दिस ऑल हैपन्स विद द हेल्प ऑफ द यूरिन। तो किडनी का जो दोनों फंक्शंस करता है, किडनी जो है वो हेल्पफुल रहता है ऑस्मो रेगुलेशन में भी हमारे, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन में भी। एक्सक्रीटरी ऑर्गन और ऑस्मो रेगुलेशन में दोनों में किडनी जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, यस। और नाइट्रोजीनियस के एक्सक्रीशन में क्या करता है कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट यूरिया है उसको आउट करने में हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन कैसे रोल प्ले करता है कि ये रेगुलेट करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन को पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से अंडर डिहाइड्रेशन कंडीशन। जब बॉडी में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है वाटर की, तो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन किडनी का क्या होता है कि ये एडीएच को बढ़ा देता है, एडीएच हार्मोन को बढ़ा देता है, रिलीज़ करवाना शुरू करवा देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और जो है ये जब पहुंचता है किडनी के पास, नेफ्रॉन के पास, तो नेफ्रॉन क्या करते हैं कि वाटर को रीअब्जॉर्प्शन, जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वहाँ पे पहुँची होती हैं, वाटर वहाँ पे पहुँचा होता है, वहाँ से वो उसको रीअब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है द एक्सक्रीटरी रोल ऑफ किडनी, जो कि हम डिस्कस पहले कर चुके हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द किडनी। होप यू अंडरस्टैंड दिस।